Hello students, how are you? Now I am here with a very good news for all of you. Today in this video, I will explain each and everything about the syllabus revised by CBSE. In this video, I'll explain the chemistry syllabus for class 11 and session 2020-21. इस सिलेबस चेंज का बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे. CBSE promised to definitely release and definitely CBSE released on time. Now after this release you should know the particular topics, the weightage of the topic you should know, the particular topic of the chapter you should know, and the most and the last important is you have to know the syllabus chopped off या फिर cut or deleted by the CBSE. So in the sequence I'll explain. So first I'll explain about the weightage, then the topic present in your syllabus and topic deleted by CBSE. That's all about released by the CBSE. Focus. This video is very useful for you. Please last तक देखें इसको. Now I'm starting with theory portion. Right. Chemistry paper 3 hours का ही होगा और chemistry 70 marks का ही होगा final में. Chemistry का तो unit 1 or the chapter 1 you can say unit 1, that is some basic concepts of chemistry. Unit 2, structure of atom. Unit 3 is the classification of elements and periodicity in properties. These first two chapter or unit I can say, if I'll talk about these, so these are of 11 marks only. Very important for all of you. Some basic concept of chemistry, the mole concept and everything is there, and the structure of atom, but few topics out of these deleted by the CBSE. That definitely in the next half of the chapter I'll explain. Now the structure of atom. These two. Third, classification of elements and periodicity properties of 3-4 marks only. Unit 3 mark 4 है. Unit 4 आपका, that is chemical bonding and molecular structure, very important, and states of matter, gaseous and liquid, chemical thermodynamics and equilibrium. This is all about book 1, part 1 you can say, of 21 marks. So this is all about book 1, unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 till equilibrium. Part 1 chemistry is there, and the weightage is first 2 chapters for 11 marks, chapter 3 for 4 marks, and rest 4, 5, 6, 7 chapter is for 21 marks. Now we'll move ahead and we'll see कि क्या changes weightage में हमारे लिए हुए हैं. Book 2 redox reaction, chapter 8, 9 hydrogen, 10 S block element, 11 some P block elements. This collectively 1, 2, 3, 4 is of 16 marks only. Now next chapter 12, organic chemistry, some basic principle and techniques, and hydrocarbons. This 13, then it is of 18 marks only. 14 chapter completely deleted by CBSE, पूरा हटा दिया है और वो चैप्टर अब हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें से भी बहुत कुछ नया है जो आपको जानने की बिल्कुल जरूरत है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन चैप्टर वाइज. If I study about chapter 1 or unit 1 you can say, the chapter is some basic concepts of chemistry. What do we have? तो CBSE ने पहले यहाँ आपको दिया कि क्या क्या सिलेबस में बेसिकली हमें अब पढ़ना है. चैप्टर 1 में जनरल इंट्रोडक्शन, importance and the scope of chemistry, atomic and molecular masses, mole concept, molar mass, percentage, composition, empirical formula and the molecular formula, chemical reaction, stoichiometry and calculation based on stoichiometry. These are the topics we'll study now for this year, right? So this was about chapter 1. Now we'll move on to chapter 2, the structure of atom. What particular topics we have here? Bohr's model
That means the all basic concept they have chopped off. CBSE ने जो basic इसका दिया था वो पूरा काटा है और start किया Bohr's model से इसको. Its limitation, concept of shells and subshells, dual nature of matter and light, de Broglie relation, Heisenberg uncertainty principle, concept of orbitals, quantum numbers, shape of sp and d orbitals, rule of filling electrons in orbitals by our rule or Pauli exclusive principle, Hund's rule, electronic configuration of atoms, stability of half-filled and completely filled orbitals. These are the topics. इसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ है बेटा, लेकिन जो बेसिक चैप्टर्स के थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, डिस्कवरी और वो सब पूरा हटा दिया वहां से. आप ये चैप्टर स्ट्रेट वे आप बोहर्स मॉडल से शुरू करोगे. अब बात करते हैं चैप्टर 3. यहाँ पे देखते हैं चैप्टर 3 में क्या पढ़ना है हमें. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज. इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, present form of periodic table, periodic trends and properties of elements, atomic radii, ionic radii, inert gas radii, ionization enthalpies, electron gain enthalpy, electronegativity, valency, and the nomenclature of elements with atomic number greater than 100. ये पूरा का पूरा चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहाँ अगर हम बात करें तो हमें कहीं भी बेसिक डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक टेबल नजर नहीं आ रहा है. तो दीज आर द टॉपिक्स. चैप्टर 1, 2 और 3 में आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं अब इस सेशन के लिए. अब चैप्टर 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में. चैप्टर 4 इज द केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस चैप्टर में नहीं हुआ है, बिकॉज दैट इज रीजन इज दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट ऑन द बेस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल. Now, valence electrons, ionic bond, covalent bond, bond parameters, Lewis structure, polar character of the covalent bond, the covalent character of the ionic bond, valence bond theory, resonance, geometry of the covalent molecule, VS-EPR theory, and the concept of hybridization, that involving sp-d orbitals, shape of some simple molecules, molecular orbital theory of homonuclear diatomic molecule, that's the you can say quantitative idea only, and the hydrogen bond. इस पूरे चैप्टर से बिल्कुल बहुत कुछ नहीं निकला है, तो ये चैप्टर पूरा का पूरा आपको करना है जैसा लास्ट ईयर था, बिल्कुल वैसा ही. नाउ बात करते हैं चैप्टर 5 में हमको क्या पढ़ना है. स्टेट्स ऑफ मैटर. 2 states we have, gases and liquid here. Solid we have in class 12, chapter 1 there. 3 states of matter, the intermolecular interactions, the type of bonding, melting, and the boiling point. Role of gas, the law of listening, and then the concept of the molecule. Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law, Avogadro law, ideal behavior, empirical derivation of the gas equation, Avogadro number, ideal gas equation, and the deviation from the ideal behavior. These are very, very important topics that we have to do in the chapter 5, the states of matter, gases, and liquid. What next we have? Definitely chemical thermodynamics, unit 4 of chapter 4. You can say this is chemical thermodynamics. अब इसमें क्या बोला CBSE ने, क्या करना है हमें to get good marks? The concept of system, the types of systems, surrounding, work, heat, energy, extensive and intensive properties, state functions, first law of thermodynamics, internal energy and enthalpy, measurement of delta U and delta H, Nash law, very good for numerical, and constant heat submission, enthalpy of bond dissociation, combustion, formation, atomization, sublimation, phase transition, ionization, solution, and dilution. Second law of thermodynamics, that's the brief introduction of a law only, that is the introduction of entropy.
as a state function, gives energy, change for the spontaneous and the non-spontaneous processes. And third law of thermodynamics, only a brief introduction. बहुत कुछ बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स इस चैप्टर से कटे हैं बेटा, क्या नहीं आना है वो भी बताना है, लेकिन पहले क्या आना है उस पर फोकस करिए आप. देन यूनिट आपका जो हमारा है वो 7, इक्विलिब्रियम. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इक्विलिब्रियम इन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रोसेसेस. Dynamic nature of the equilibrium, the law of mass action, equilibrium constant, factors affecting equilibrium, Lee-Chatelier principle, ionic equilibrium, ionization of acid and base, strong and the weak electrolyte, degree of ionization of polybasic acid, acidic strength, concept of pH, buffer solution, solubility product, common ion effect with illustrative examples are the topic CBSE has given for this year question paper. So again, very important thing, right? Now we will move ahead with chapter. Next chapter is the redox reaction. This chapter is a really very important chapter, beta, because some portion of this chapter we have done in, class 10th, a bit of it we have done there. This chapter, the concept of oxidation we should know, reduction, redox reaction, oxidation number, balancing reaction in terms of ion and gain of electrons, and change in oxidation number. ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट था. देखिए यहाँ की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये करा हुआ है आपने पहले क्लास 10 में भी थोड़ा है, लेकिन हाँ डेफिनेटली उतना डिटेल में हमने नहीं करा है. कॉन्सेप्ट हमने करा है यहाँ पे. बैलेंसिंग रिएक्शंस में है, दोनों तरीके से है, लेकिन लास्ट के थोड़े पोर्शन इस चैप्टर से भी पूरा सीबीएसई ने डिलीट किया है. चलिए आगे देखते हैं क्या किया है. अब बात करते हैं यूनिट 9 की, दैट्स हाइड्रोजन. The position of hydrogen in the periodic table, its occurrence, isotopes, hydride ionic covalent, and interstitial physical and the chemical properties of water, heavy water, hydrogen as a fuel, a lot of topics from the chapter chopped off. यहाँ से बहुत सारे टॉपिक सीबीएसई ने हाइड्रोजन से आपके हटा दिए हैं बेटा. कौन से टॉपिक हटाए मैं बिल्कुल ही बताती हूँ आपका. अब बात करते हैं यूनिट 10 आपके एस ब्लॉक एलिमेंट, एल्केली या एल्कलाइन अर्थ मेटल. इसमें से क्या हटा दिया है? ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं. जनरल इंट्रोडक्शन रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्यूरेंस, एनालिसिस प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप रखा है, डायगोनल रिलेशनशिप आपका रखा हुआ है, ट्रेंड्स इन वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज भी आपका रखा हुआ है, such as ionization enthalpy, atomic radii, ionic radii, and trends in the chemical reactivity with oxygen, water, हाइड्रोजन एंड हेलोजन आपका इस चैप्टर में रखा. लेकिन इससे भी बहुत सारे आपके जो टॉपिक्स हैं वो कट कर दिए हैं सिलेबस से आपके सीबीएसई ने. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फायदा और नुकसान दोनों है इसका, तो आपको बैलेंस करके चलना है. सम पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें अब क्या क्या दिए हैं? ग्रुप 13 की बात करें, जनरल इंट्रोडक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्यूरेंस, वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, trends in the chemical reactivity, anomalous property of the first element of group, boron, physical and chemical properties. And now next is group 14 element, right? 13 में ये है, 14 में आपका general introduction, electronic configuration, occurrence, variation, oxidation state, trends in chemical reactivity, anomalous behavior of the first element again, कार्बन कैटनेशन, द एलोट्रोपिक फॉर्म्स, फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज. ये ग्रुप 14 हमें करना है. किसकी हम बात कर रहे थे? आपको ये याद रखना बेटा, हमने ये बात की यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 13 एंड 14 की. अब आगे आते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, आई कैन से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स. It is the base, general organic chemistry base for organic chemistry for class 12th as well. So we'll study the general introduction, classification, IUPAC nomenclature of organic compounds, electronic displacement in a covalent bond, interactive effect, electromagnetic effect, resonance, hyperconjugation, homolytic and heterolytic fission,
ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं आपके यहाँ, जबकि इसके अंदर आपका एक्सपेरिमेंटल पोर्शन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, फाइंड आउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो पूरा का पूरा डिलीट कर दिया पोर्शन। क्या डिलीट किया मैं बिल्कुल डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, लेकिन यहाँ से भी आपका पार्ट बी काइंड ऑफ डिलीट कर दिया है। अब आते हैं आपका हाइड्रोकार्बन्स। ये तो क्या टीचर के लिए 10 पीरियड्स विल टेक, नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। हाइड्रोकार्बन में क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसमें एल्केन, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, कॉन्फर्मेशन, इथेन ओनली, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। आगे क्या करना है, एल्कीन्स में सेम नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड, इथीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन, वाटर, हाइड्रोजन हेलाइड्स, मार्कोनिकॉफ रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरोक्साइड इफेक्ट दोनों पढ़ना है यहाँ पे, ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एडिशन, एंड एल्काइन में हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन इथाइन, physical method of preparation, chemical reactions, acidic characteristics of alkyne, and addition reaction of hydrogen, halogen, hydrogen halide and water. ये पूरा का पूरा हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब के बारे में इतना पढ़ना है, एंड उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में भी पढ़ना है हमें। इंट्रोडक्शन, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, बेंजीन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एरोमेटिसिटी, एंड देन उसके बाद आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, mechanism of electrophile substitution, nitration, sulfonation, halogenation, Friedel-Crafts alkylation and acylation, दोनों reactions, directive influence of functional group in monosubstituted benzene, carcinogen toxicity। इन दोनों चैप्टर्स में से सीबीएसई ने बिल्कुल, बिकॉज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बेस है क्लास 12 का, तो उन्होंने बिल्कुल इसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की है, तो इंटैक्ट हमें सारा पढ़ना ही है यहाँ पे बेटा। इसके आगे एक और चैप्टर होता था, चैप्टर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि सीबीएसई ने उस पूरे के पूरे चैप्टर 14 को हटा दिया है। चैप्टर 14 हमें करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए, और बहुत ध्यान से आप देखिए क्या नहीं पढ़ना है। आप अपना टेक्स्ट बुक उठाइए और उसमें जो करना है उसको टिक करिए, जो नहीं करना है उसको पेंसिल से आप कट करते जाइए। केमिस्ट्री 11th, सबसे पहले यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका चैप्टर 1 है। इसमें आपको नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम एंड मॉलिक्यूल, ये नहीं करना है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं छोड़ देना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 है आपका, इसमें से क्या नहीं पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, ये नहीं पढ़ने की जरूरत है। थॉमसन मॉडल, लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यानी बोहर्स मॉडल से शुरू करना है ये चैप्टर। तो ये जो आपको ये टॉपिक्स दिए हैं सीबीएसई ने, तो पोर्शन टू बी रिड्यूस्ड, ये पूरे के पूरे आपके चैप्टर से हटा दिए और निकाल दिया है इनको। अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तो इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमने सीधी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से शुरू किया है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें नहीं करना है। केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करना है बच्चों, इसमें से कंप्लीट स्टडी, नो डिलीशन। चैप्टर 4 आपको पूरा करना है, इसके अंदर से कुछ डिलीट नहीं किया है, ये कंप्लीट स्टडी आपको करना है और इसके अंदर से कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या डिटेक्ट किया, हम क्या डिलीट कर दिया सीबीएसई ने, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर स्पीशीज, एलिमेंट्री आइडिया। लिक्विड स्टेट से वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, नो डेरिवेशंस, ये हटा दिए गए हैं।
चैप्टर 5 से लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एंड मॉलिक्यूलर स्पीड, लिक्विड स्टेट, द वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये हमें नेगेटिव या कट मार्क करना है अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से क्या हटा दिया है? हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक अब आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इक्विलिब्रियम में हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, एलिमेंट्री आइडिया एंड हेंडरसन इक्वेशन, ये आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। रेडॉक्स रिएक्शन में एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। हाइड्रोजन में प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपरेशन, देन रिएक्शन एंड सेंटर स्ट्रक्चर एंड यूजेस। तो ये आपका रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड यूजेस, ये कुछ भी हमें हाइड्रोजन से रिलेटेड ये टॉपिक्स बिल्कुल छोड़ देने हैं, नहीं करना। सीबीएसई ने ये हटा दिया है सिलेबस से। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, biological importance of sodium and potassium, calcium oxide, calcium carbonate and their industrial uses. Biological importance of magnesium and calcium, ये पहले हम पढ़ते थे, अब हम इन टॉपिक्स को छोड़ देंगे और इनको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। For this session, sure, if something will come, we'll see in the next session. Some P block elements, इसमें क्या हटा दिया बेटा? Some important compounds, borax, boric acid, boron hydride, aluminium, reactions with acid and alkali and its uses अब सिलेबस में नहीं है। Carbon, use of some important compound, oxide, important compounds of silicon and a few uses. Silicon, tetrachloride, silicon, silicates and zeolites and their uses अब नहीं पढ़ने की जरूरत है, इसको अब टेक्स्ट बुक में पेंसिल से कट कर दीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने खुद ही आपको बोला बहुत ज्यादा चेंज नहीं करा है। मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस विच इज गिवन एज एन एक्सपेरिमेंट मोड में, देन ये उन्होंने हटा दिया है, आपका बेसिक्स से रिलेटेड ये नहीं है बेटा। हाइड्रोकार्बन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हेलोजन, कंबस्शन एंड पायरोलिसिस, ये 2-3 रिएक्शंस हैं जो सीबीएसई ने आपके सिलेबस से कंप्लीटली हटा दिए, आपको नहीं करना है। एंड चैप्टर 14 इंटायर चैप्टर नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। तो इन दैट वेज मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया? सबसे पहले मैंने आपको वेटेज बताया 11, 4, 21, 16 एंड 18, टोटल 70 मार्क का पेपर आएगा थ्योरी का, जिसका वेटेज हर में चैप्टर्स के क्लब करके आपको लिखा है, बता दिया है। देन उसके बाद क्या टॉपिक्स पर चैप्टर सीबीएसई ने बोला आपको पढ़ना है, इंक्लूड किया सिलेबस में, तो ये मैंने चैप्टर वाइज आपको सब बता दिया है कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आपको याद रखना है कि मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन से टॉपिक पर चैप्टर सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है या वो डिलीट कर दिया है, तो ये आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इफ यू वांट टू सी समथिंग तो आप आराम से दोबारा खोलिए, वीडियो पूरा एक बार देखिएगा, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, बिकॉज सीबीएसई दे हैव रिलीज 3 टू फॉर्म, ये फॉर्म में आपको कुछ कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। यू कैन सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन टू confirm the doubts. Now in this video I have explained, and I know this video is very important for you. Next, very soon I'll be there with new concept, with new video. Till then, thank you, bye bye.